Assalamu alaikum, all viewers, my dear friends. This is Sajad Ali Mangi, and you are watching ICE Facebook live channel. And today we have a special guest, Dr. Asma Ibrahim, and she is a prominent and senior archaeologist, and she also as a director. She is also director, museum, archives, and art gallery department of State Bank, Pakistan. So today our topic for the discussion is the importance of heritage buildings in the modern development world. So it is very important to discuss today about the heritage buildings, and because civil engineer, we must know the importance of heritage and the heritage buildings. So today we have an expert in the archaeology, and she will tell us about the heritage buildings and its importance. So hope today's session will be very fruitful and knowledgeable for the new learners. Welcome, Madam Dr. Asma Ibrahim. Thank you. Thank you for inviting me. It's my great pleasure to be here today and talk to the people. I'm not sure whom I'm talking to. Are there students or scholars who are our audience? It's a Yes, university yes, thing. especially yes, yes. हमारी मेहरान यूनिवर्सिटी का कैंपस है खैरपुर मीरस में. उसका एक चैप्टर है आईसीई का. तो ये जो प्रोग्राम हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हम आईसीई स्टूडेंट चैप्टर के बिहाफ पे कर रहे हैं, और मैं इस चैप्टर का फैकल्टी एडवाइज़र हूँ, और नोमान सियाल इस चैप्टर का प्रेसिडेंट है. अच्छा, very good to see all this from Sindh. In fact, from interior Sindh. हम लोग इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कराची वाले. तो इसका मतलब है हम उर्दू में भी बोल सकते हैं. Okay. Yes, this session is in English and Urdu. Okay. Or for how long I can talk? How much time do I have? Yes. This session run for 1 hour. Okay. So ऐसा है कि I'll talk a little bit, then maybe there will be a question answer, huh? And let me introduce myself first. Okay, and congratulate you. I want to congratulate Dr. Sajjad Mangi and Numan Syal for such a big effort, and I'm really proud of you two young guys, what you're doing. अच्छा, तो मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दूं कि मेरा बड़ा डिफरेंट किस्म का कैरियर है. सो आई स्टार्टेड एज एन आर्कियोलॉजिस्ट विद द डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम्स. So we used to keep shuffle in between museum and Department of Archaeology, where we used to go for digging and then explorations. And I'm the first woman in this field who started digging in the Department of Archaeology, and it was a big task. So because of that Department of Archaeology, I got a different kind of experience. So we had field experience. We were in the National Museum. So I served for about 20 years in that department, and I carried out many different projects related to archaeology and museums. Then in 2006, State Bank announced for this position. So I applied for that and I was selected, and then I established this museum for the State Bank of Pakistan, and now I'm establishing their archives. So when I started this project, it was basically a conservation project. It's Imperial Bank of India's building where we established this museum. पहले हमने उसकी conservation की, and in the meantime I acquired the collection for display. So it's a basically monetary museum, starting from you can say barter system up to e-banking, plus we have an art gallery. So this all I'm telling you just to have a background of the work which I was involved in. And then I have an NGO who works on conservation projects in Pakistan. And then we have a library under that NGO. Then we have, and you all are most welcome to come and take advantage of that library and the laboratory we have in Karachi. Any student is welcome. Plus our conservation projects, we welcome all the volunteers and
interns, whoever would like to join us. So at the moment, we are doing a project at Palektina Hall and Indus Valley School of Art and Architecture. So any student who wants to join us in their free time, they are most welcome. अच्छा, तो about थैंक यू मैम। वेलकम। और मैं एक बात, आपकी कोलाबोरेशन से मैं एक बार अपने स्टूडेंट्स को लेकर भी आया था स्टेट बैंक के जो म्यूजियम है आपका। हाँ, मुझे याद है। हमने विजिट किया था और बहुत अच्छा हमारी नॉलेज में इजाफा हुआ था कि करेंसी किस तरह बनती है और सारी चीजें हमने देखी थी और इट वाज वेरी नाइस ट्रिप। और अब जो हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हम करते हैं आजकल, जैसे हमारा म्यूजियम फुली एक्सेसिबल है, जिसका कॉन्सेप्ट नहीं है पाकिस्तान में। तो इट इज फुली एक्सेसिबल फॉर ब्लाइंड, फॉर डेफ एंड डम्ब एंड फॉर व्हील चेयर। तो और वी टीच फोटोग्राफी टू ब्लाइंड स्टूडेंट्स। फिर उनकी जो फोटोग्राफ्स होती हैं वो स्टेट बैंक फ्रेम करके उनको सेल के लिए रखता है म्यूजियम में। तो ये हमने अभी तक 3-4 स्कूलों को ट्रेन कर दिया है। That's another something new. अगर कोई सीखना चाहता है तो वो भी मोस्ट वेलकम है। हम इंटर्नशिप भी करवाते हैं म्यूजियम में और वॉलंटियर्स भी रखते हैं म्यूजियम में। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आई रियली अप्रिशिएट स्टूडेंट्स फ्रॉम दिस इंटीरियर सीन, दे आर सो इंटेलिजेंट। क्योंकि हमारे साथ सारे लड़के जो काम करते हैं सब इंटीरियर सीन के होते हैं और इतने इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं। थैंक यू बहुत खुशी होती है। थैंक यू मैडम। एंड इंशाल्लाह दिस ईयर or next year I will send to you my few students to you as an training. यस, अभी भी अगर कोई आना चाहे दे आर मोस्ट वेलकम। हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, पालिकदिना हॉल पे चल रहा है और इंडस वैली स्कूल पे चल रहा है। तो अच्छा, तो आज का जो आपका टॉपिक है वो एक्चुअली इट्स नॉट अ न्यू टॉपिक और उस पर बड़ी डिस्कशंस होती रहती हैं हमारी सारा वक्त। सो देयर आर टू स्कूल्स ऑफ थॉट। एक स्कूल है जो कहता है कि हमें कंजर्वेशन करनी चाहिए और एक स्कूल कहता है कि हमें कंजर्वेशन नहीं करनी चाहिए। उसका मतलब कि एक स्कूल का ये ख्याल है कि हम बिल्डिंग्स रखें, नहीं दूसरे स्कूल ऑफ थॉट का ये ख्याल है कि हम बिल्डिंग्स ना रखें। तो हमारी अक्सर इसके ऊपर बहस होती है व्हेन वी आर इन द कमेटी फॉर गिविंग परमिशंस एंड वर्किंग ऑन दिस काइंड ऑफ बिल्डिंग्स। तो हियर इज लाइक आई एम पुटिंग अ 4 or 5 points in front of you people that why should we care about conservation? Yeah, why should we care about heritage? एक्चुअली मैडम ये जो टॉपिक है ये सिविल इंजीनियर के लिए नया टॉपिक है। अच्छा, और क्योंकि मैंने ये चीज़ जो है इसमें इम्पोर्टेंस समझी, क्योंकि हमारे यहाँ एक सब्जेक्ट होता है आर्किटेक्चर के हवाले से। तो उस सब्जेक्ट आर्किटेक्चर एंड टाउन प्लानिंग, तो जब आर्किटेक्चर और टाउन प्लानिंग आ जाती है तो वहाँ पे ये है कि जब भी हम टाउन प्लानिंग करते हैं तो कोई ओल्ड बिल्डिंग्स ज़रूर आ जाती हैं उस एरिया में। तो उसको आप डिमोलिश नहीं कर सकते, आप वेव ऑफ नहीं कर सकते, क्योंकि प्रीवियसली आई वाज एन असिस्टेंट डायरेक्टर KBCA, सो आई नो द इम्पोर्टेंस ऑफ हेरिटेज। तो क्योंकि आजकल भी जो आप वेबसाइट पे हम देखेंगे तो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की वेबसाइट पे गालबन 400 से ज़्यादा जो हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं वो वहाँ पे उन्होंने लिस्ट रखी हुई है। तो कोई भी हेरिटेज बिल्डिंग है आप उसको बगैर परमिशन के आप ना उसको डिमोलिश कर सकते हैं ना। जस्ट सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी क्या करती है, अगर उसको डेंजरस पोजीशन में देखती है तो उसको नोटिस दे देती है कि उसको वैकेंट करें। अच्छा, हाँ, ये तो है कि डिमोलिश जो बिल्डिंग अथॉरिटी का एक मेंबर होता है ना सिंध एडवाइजरी कमेटी में, जो हेरिटेज कमेटी है जो परमिशन देती है, उसमें चीफ सेक्रेटरी होते हैं, कल्चर के सेक्रेटरी होते हैं, आरिफ हसन साहब हैं और हमीद हारून है। फिर उसकी एक टेक्निकल कमेटी है एडवाइजरी कमेटी की। हाँ, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि हम सिंध में भी यहाँ पे लाड़काना में भी मेरी पोस्टिंग रही है, मैं मीरपुर खास में भी था। तो यहाँ पे भी काफ़ी हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं पुरानी। तो पुरानी जो बिल्डिंग्स हैं ना, तो वो प्रॉब्लम होता था कि अगर, क्योंकि वो ज़ाहिर है पुरानी बिल्डिंग्स हैं तो वो डेंजरस पोजीशन में होती हैं। और काफ़ी तो ये है कि लोगों के वो घर होते हैं, रेजिडेंशियल हाउस होते हैं, तो आप ना तो उसमें एंटर हो सकते हैं और ना उसको डिमोलिश कर सकते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सिविल इंजीनियर के पॉइंट ऑफ व्यू के, तो उसको समझना और उसकी फिर कंजर्वेशन करना। अगर वो डेंजरस पोजीशन में है तो हाउ वी कैन कंजर्व इट एंड हाउ वी कैन रिपेयर। तो उसमें मटेरियल आ जाते हैं, जैसे मेरी एक्सपर्टीज़ हैं, मेरी PhD है कंक्रीट और मटेरियल इंजीनियरिंग में। तो किस तरह के हम ग्रीन मटेरियल यूज़ करें ताकि हम कंजर्वेशन साइट पे। तो मैडम आप हमें थोड़ा बताइएगा कि हेरिटेज बिल्डिंग की इम्पोर्टेंस क्या है
और उसकी जो है हमारे डेवलपमेंट मॉडर्न वर्ल्ड में, क्योंकि हम जिस तरक्की याफ्ता दौर में जा रहे हैं वहाँ पे हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, हाई राइज बिल्डिंग्स बना रहे हैं, तो उसमें ये पुरानी बिल्डिंग हम रखना क्यों ज़रूरी है? हाँ, ये इस पॉइंट की तरफ मैं आ रही थी, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप लोगों को ये पता हो, बिकॉज सिविल इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स वो लोग होते हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। जब तक उनको इसकी वैल्यू का यस, पता नहीं होगा वो इसकी कदर नहीं कर रहे होते ना, वो बिल्कुल कमर्शियल वे में यस, सोच रहे होते हैं। एक्चुअली आर्किटेक्ट का बिल्कुल, आई एम सॉरी बट उनका एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है। हम म्यूजियोलॉजिस्ट और कॉन्जर्वेशनिस्ट है ना, बिकॉज जब मैं यस, 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 म्यूजियम की बिल्डिंग पे काम कर रही थी तो काफी फेमस आर्किटेक्ट थे हमारे कंसल्टेंट, बट उनका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल डिफरेंट था। वो हर चीज को कहते हैं बदल दो, इसको चेंज कर दो, नया लगा यस, दो, यस, जबकि हमारा ये होता है कि जो चीज जहाँ है अगर उसमें डेटेरिएशन हो रही है तो आप उसको उधर स्टॉप कर दो। एंड कंजर्व करें, हाँ, आई कंजर्व, बिलीव कि एवरी बिल्डिंग इज लाइक अ पेशेंट एंड वी आर लाइक अ डॉक्टर। सही, हर बिल्डिंग के अपने इश्यूज होते हैं। यस, आप एक बंदे लगे रूल्स हर बिल्डिंग पे अप्लाई नहीं कर सकते। पहले हमें उसको पूरा कंप्लीट स्टडी करना होता है, उसके प्रॉब्लम्स देखने होते हैं, उसकी डायग्नोसिस करनी होती है कि इसकी ये प्रॉब्लम क्यों है, और उसको पहले हमें प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना होता है। जैसे हमने वरुण देव टेम्पल पे कंजर्वेशन की तो पहले सारे हमने उसके प्रॉब्लम्स देखे, और जो मटेरियल की भी आपने बात की थी वो भी हम उसको टेस्ट मटेरियल्स लगाते हैं। जो मटेरियल ऑलरेडी उसमें लगा हुआ होता है, जो बिटुमेन होता है, उसको निकाल के हम उसकी एनालिसिस करते हैं लैब में। फिर उसके बेसिस पे हम जो मटेरियल तैयार करते हैं उसको एज अ स्पेसिमेन हम 15 दिन के लिए छोड़ देते हैं लगा के, टेस्ट स्पेसिमेन होता है। जो कंजर्वेशन होती है वो एक जरा लंबा प्रोसेस यस, होता है, जो कि आर्किटेक्ट और सिविल इंजीनियर्स उसको समझ नहीं रहे होते ना, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको एड्रेस कर लेते यस, हैं कि यस, हमें ये बिल्डिंग्स रखनी क्यों चाहिए। क्यों अक्सर यस, आर्किटेक्ट जो सिविल इंजीनियर्स हैं वो हमसे पूछते हैं कि इसको रखने का क्या फायदा है, इसकी जगह पे तो 60-70 स्टोरेज बिल्डिंग बन जाएगी, और आई चुंदरीगढ़ रोड है, कमर्शियल एरिया है, तो आप इतना जाया क्यों कर रहे हैं, इसको बिल्डिंग रख के क्या करेंगे। तो हमारे पास इसके जैसे एक तो हमारे पास सबसे बड़ा जो रीजन होता है कि एक तो आर्किटेक्चरल ब्यूटी होती है, जो कि आप बोलो कि एस्थेटिकली, जैसे न्यूरो साइंसेज में आजकल लोग बोलते हैं कि एस्थेटिक ब्यूटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आर्ट वर्क आप लोग क्यों देखने जाते हो किसी गैलरी में इतना एफर्ट करके। इसी तरह जब लोग किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं तो वो जरूर देखने जाते हैं, पैलेस है, टॉप कापी का पैलेस है, दूसरे इटली में चर्चेज हैं। तो ये एक आपके दिमाग को सुकून भी देती है, रिलैक्स भी करती है। एक तो ये रीजन होता है इसका। Then historic buildings are linked to our past. It is not about bricks and brick saving. Actually ये layers होती हैं जो कि हमारे हिसाब से layers of history होती है। हर layer आपको एक पास्ट टाइम पीरियड का बता रही होती है कि इस टाइम पीरियड में ये इस बिल्डिंग में एडिशंस हुए या नहीं हुए। जैसे कि हम एक्सकवेशन करते हैं तो इट्स हिस्ट्री इन डिफरेंट लेयर्स। And then third is historically significant buildings contribute to our city's cultural and economic well-being. कल्चरल लाइफ को रिवाइटलाइज करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। कितनी पुरानी बिल्डिंग्स हैं जो हमने रीअडॉप्ट की हैं, जैसे हमारा म्यूजियम ही है, तो वो एक, जो लोग आते हैं वो पहले बिल्डिंग को एडमायर करते हैं, फिर वो म्यूजियम की तरफ देख रहे होते हैं। इसी तरह और डिफरेंट हॉल्स हैं जिनको रीअडॉप्ट किया गया है। तो एक तो ये रीजन होता है कि हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट होती है। देन हेरिटेज डेजिग्नेशन या बिल्डिंग्स जो भी होती हैं, डिजाइन होती हैं, ये उस प्रॉपर्टी की वैल्यू को भी बढ़ाती हैं। अब जो हेरिटेज बिल्डिंग होगी एकदम से उसकी वैल्यू बढ़ जाती है जब वो हेरिटेज डिक्लेयर हो जाती है। जैसे कि आपने कहा कि आप कमेटी में थे, तो अक्सर ये होता है कि लोग उसकी वैल्यू को बढ़ा देते हैं। Then heritage preservation is more labor intensive, मैं ये कहती हूँ कि which means more jobs। अब जितने हमने हेरिटेज कंजर्वेशन के प्रोजेक्ट्स किए हैं, हमने उसमें काफ़ी लोगों को इन्वॉल्व किया है, उनको उसकी वसातत से जॉब मिला है, और नया काम वो लोग सीख रहे हैं। वही टीम जो हमारे साथ काम कर रही थी उसने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे स्टोन कार्विंग के काफ़ी प्रोजेक्ट्स किए। फिर एग्जीबिशंस लगी कोयल में, डिफरेंट गैलरी में, तो वही लड़के उस एग्जीबिशन में भी पार्टिसिपेट करते हैं। फिर उन्होंने मुजस्मे बनाने सीख लिए, वो बेच रहे हैं। अक्सर लोग उनसे अपने घरों में काम कराते हैं।
तो इससे एक तरह से उनकी वोकेशनल ट्रेनिंग होती है और उनको जॉब भी मिल रहा होता है। अब मेरा ये ख्याल है कि हम और मैडम लोग ये एक चीज ये है कि एक चीज ये है कि लोगों में अवेयरनेस कम है। हमारे जो जी। न्यू स्टूडेंट्स हैं या जो जब उसमें अवेयरनेस बहुत कम है। अब जैसे शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी में आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट है, तो हम्म। अगर उसमें एडमिशन का हम रेशो देखते हैं तो चॉइस होता है स्टूडेंट्स का आर्कोलॉजी। व्हाई इट इज लास्ट चॉइस फॉर द स्टूडेंट्स? एक्चुअली अच्छा। दे मस्ट थिंक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्कोलॉजी। एक तो हम जो एडमिशन लेते हैं वो मार्केट ओरिएंटेड होता है। अब जैसे मार्केट में जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी हाँ। वो चीज़ टॉप लेवल पे चली जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल सिविल इंजीनियरिंग है, उसकी जॉब्स ज़्यादा होंगी तो सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट चूज करेगा। तो पास्ट में अब सिविल इंजीनियर का 20 साल पहले स्कोप नहीं था, या 10 साल पहले इतना स्कोप नहीं था। वो इलेक्ट्रिकल टॉप पे होती थी। वो ये मार्केट ओरिएंटेड होता है। क्या मार्केट आर्कोलॉजी की बहुत कम है इस वजह से स्टूडेंट नहीं लेते, या ये लेकिन डिफिकल्ट फील्ड है? ये एक वाइस वर्सा होता है, मार्केट जब होगी जब स्टूडेंट होंगे। अब जैसे मार्केट अगर है तो हमें लोग नहीं मिल रहे होते एम्प्लॉयमेंट के लिए, और ये काम होता है गवर्नमेंट का कि वो जॉब्स क्रिएट करे। हमारा डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी इतना बड़ा है, उसके अंदर अगर जॉब्स होंगी तो ही स्टूडेंट आएगा ना। मतलब आप जो बात कर रहे हो, स्टूडेंट ये सब्जेक्ट नहीं यस लेता यस बिकॉज उसको अपना पेट भी तो पालना होता है ना। कैसे बच्चे एडमिशन ले लें फिर जॉब नहीं मिल रही यस हो यस तो क्या करेंगे? यस So it is यस linked together, the Department of Archaeology and Culture and the Department of Archaeology in the university. Unless you have vacancies for these students, तो बच्चे तो सब्जेक्ट में नहीं आएंगे ना। अब जैसे हमारे क्लास में 10 लोग थे तो उसमें से एक को मुझे जॉब मिली थी, तो 9 जो थे वो डिफरेंट जगहों पे चले गए, ज्यादातर यस टीचिंग चले जाते हैं। तो ये हमारा काम है कि हम जॉब्स यस क्रिएट यस करें, प्लस जॉब्स इसके अलावा भी। जैसे एनवायरमेंटल असेसमेंट होती है, हर मुल्क में ये रूल है कि अगर आप कोई बिल्डिंग यस बना रहे हो उससे पहले आपकी एनवायरमेंटल असेसमेंट होगी। हमारे मुल्क में वो नहीं या होता। यस या हाँ, ये कंडक्ट होती है। बिल्कुल या ये अमेरिकन। कंडक्ट होती है, उसके लिए एक डिपार्टमेंट है, हाँ। सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी एक डिपार्टमेंट है उसका। क्योंकि आई डिड माय मास्टर्स इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, तो उसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप किसी भी इंडस्ट्रियल जोन की या कोई नए प्रोजेक्ट की या ये कर रहे हैं, तो उसमें अगर हेरिटेज साइट आ जाती है तो ये बड़ा प्रॉब्लम होता है उनके हाँ, लिए। मगर ये वो करते नहीं है ना। ये जो हमारा तजुर्बा है कि वो हाँ ये कर नहीं हो रही होती, नहीं, वो अगर तो होती भी ये है तो वो, हवाई जहाज के लाइसेंस दे अगर देते होती भी है तो वो फिर, हाँ नहीं होती भी है मगर वो आ, ये कहें कि प्रैक्टिकल नहीं होती, वो नहीं किताबों होती। तक महदूद हो जाती है। हाँ, होती है, बिकॉज़ ठीक है। हाँ, हाँ होती अब है जैसे मगर हमने ईएनए हाँ के लिए सर्वे किया, जब वो दादू में कर रहे थे ना अपना ऑयल का सर्वे करने वाले थे, तो उन्होंने हमसे एनवायरमेंटल सर्वे करवाया था। उसमें हमने टीम्स भेजी थी अपनी। मगर ये यस कि यस वो हर बंदा नहीं कर रहा, हर कंपनी नहीं कर रही होती। अब आप देखो वो जो नहीं कर रही, यस यू आर आरबी राइट। और कैनाल्स बनी है, उसमें कितनी साइट्स चली गई। आमरी की बहुत यस ही इम्पोर्टेंट साइट थी, बिल्कुल बिल्कुल। प्री इंडस सिविलाइजेशन, वो भी चली गई है और हम लोग शोर मचाते रहे यस मगर यस कुछ नहीं हुआ है। तो हाँ ये अगर लाजमी हो जाए तो बहुत सारे लोगों को उसमें जॉब मिल जाए। आप अकेले ही होंगे ना अगर आर्किटेक्ट होंगे तो बिल्कुल बिल्कुल। डिपार्टमेंट में, तो उधर 10-20 यस होने यस चाहिए यस जो कि ऑल ओवर सिंध में ही सर्वे कर रहे हो, जहाँ जहाँ पर ऑयल ड्रिल हो रहा है या बिल्डिंग बन रही है। तो उससे बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज हो यस जाएंगी। यस तो यूएस में इट्स अ मस्ट, और हर कंपनी को ये मस्ट होता है, हर बिल्डिंग बनाने वाले को भी ये मस्ट होता है कि वो ये सर्वे करवाए। तो अगर ये चीज क्रिएट हो जाए, हमारी लेजिस्लेशन में आ जाए, तो बहुत लोगों को उससे भी जॉब मिल जाएगा ना। जरूरी नहीं कि सब कल्चर डिपार्टमेंट में जाएं। सो दे कैन बी डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉब्स व्हिच यस। are related with the इज environment. देयर इज देयर एनी is there any opportunities other than government jobs हाँ, तो अब जैसे एनजीओ से। आर्कोलॉजी में? हम्म। नहीं, स्कूल यस ज्यादातर यस। तो आप लोग गवर्नमेंट में ये काम कर सकते हो ना, बिकॉज प्राइवेटली आप डिगिंग वगैरह आपको अलाउड नहीं है। सो इट इज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ सिंध, और अब आफ्टर कंसल्टेंसी डेवलप। कंसल्टेंसी हाँ, कंसल्टेंसी जैसे हमारी एनजीओ करती कंसल्टेंसी है। सर्विसेज। जी, जी, हमारी एनजीओ करती है। बट कंसल्टेंसी कब चलेगी? अब आप देखो, इंडिया में जब मैं कॉन्फ्रेंस में गई थी, वहाँ 200
डिफरेंट NGOs आई थी जो कि इससे रिलेटेड थी, एनवायरमेंटल सर्वे से, 200 और 200 conservationists थे. Yes, yes, There were yes, yes. about 900 experts So of it different, means all NGOs, it, private. it means there is a very important role of Sindh Environmental Protection Agency. एग्जैक्टली तो अब जैसे अगर हमारी NGO है, बट अगर ये अनाउंस होगा तो आप उसमें कम्पीट करोगे ना. जब लोगों को आपने पाबंदी नहीं किया हुआ कि वो ये सर्वे करवाना जरूरी है, उसके बगैर वो कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, तो वो तो फिर कोई फायदा नहीं है ना. आप कंसल्टेंट बन के बैठे हो अगर आपको कंसल्टेंसी नहीं मिल रही है. तो दिस इज द जॉब ऑफ द गवर्नमेंट टू क्रिएट सच विंडोज टू वर्क ऑन. तो फिर तो बहुत सारे प्राइवेट भी आ जाएंगे कंसल्टेंट. अभी तक तो सिर्फ एनवायरमेंटल कंट्रोल एजेंसी कर रही है, वरना जब मार्केट होती है, जैसे आपने बोला, अगर मार्केट होगी तो लोग आएंगे ना. ठीक है ना. तो ये एक चीज है जो कि इंटरलिंक्ड है. मैडम एक स्टूडेंट का सवाल है. वकास मरी का सवाल है कि अगर कोई बिल्डिंग हेरिटेज साइट रिकमेंड हो जाती है तो उसकी मेंटेनेंस पे खास फोकस नहीं दिया जाता, इसका क्या रीजन है? हाँ, ये जैसे हमारे फॉरेन कंट्रीज में होता है कि आधा पैसा ओनर दे रहा होता है और आधा गवर्नमेंट दे रही होती है. यहाँ पर गवर्नमेंट ये बोलती है कि आपने खुद ही मेंटेन करना है. तो वो एक तो मेंटेनेंस महंगी होती है, सेकेंडली उनकी एक्सपर्टीज नहीं होती है, तो वो लोग इसको चोरी चोरी इग्नोर करते हैं. अक्सर तो पीछे से गिरा देते हैं, बिल्डिंग फ्रंट खड़ा रह जाता है, रातों रात बिल्डिंग गिरा देते हैं. तो ये एक चीजें हमें बहुत फेस करनी पड़ती है ना. IIH चुंदरीगढ़ रोड पे कितनी बिल्डिंग्स उन्होंने ऐसे गिरा दी, बिकॉज एक तो वो इंटरेस्टेड नहीं होते, सेकेंडली उनकी एक्सपर्टीज नहीं होती, thirdly they don't want to spend their money on a building which is abandoned. अगर उसी बिल्डिंग पे उसको करोड़ों मिल रहे हैं आदमी को, तो वो उसके ऊपर क्यों खर्चा करेगा. ये एक बहुत ही सीरियस हमारे साथ इशू है. जैसे बोल्टन मार्केट पे उन्होंने 4-5 बिल्डिंग एक साथ रातों रात जला दी थी मिट्टी का तेल डालकर, तो अब उसकी जगह पे हाई राइज बन रहा है. अब आप सिल्क बैंक देख लो, सिल्क बैंक की जो बिल्डिंग थी, दिस इज वन ऑफ द यूनिक बिल्डिंग्स ऑफ कराची, जो सेमी सर्कुलर थी, उसको उन्होंने पीछे से गिरा के वहाँ पे 100 स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हैं. हम लोगों ने इतना एहतजाज किया, उसका कोई एनवायरमेंटल सर्वे नहीं हुआ है. IIH चुंदरीगढ़ रोड के कॉर्नर पे टावर के कराची सर्कुलर रेलवे के प्रोजेक्ट में भी कुछ साइट आ रही हैं क्या? नहीं, उसमें आ रही थी, मगर वो आरिफ साहब ने काफी उसके लिए फाइट किया, फिर उन्होंने उसका रूट चेंज करवाया. एक तो रूट ऐसा आ रहा था कि कायद-ए-आज़म का मज़ार उसके नीचे जा रहा था और वो ऊपर से गुजर रही थी. तो वो आरिफ हसन साहब को भी मस्ट अप्रिशिएट, ही रियली वर्कड हार्ड टू चेंज द रूट. तो उसमें कोई ऐसी अभी साइट नहीं आ रही है. अभी जो मेरा सबसे बड़ा कंसर्न ये है इस वक्त, जो हमारा कंसर्न ये है कि हमारी मेन स्ट्रीट्स पर क्या हो रहा है. जैसे कि मैंने आपको कहा, IIH चुंदरीगढ़ रोड हमारी मेन बिजनेस स्ट्रीट है. वहाँ पे बहुत सारी, आई थिंक मोस्ट ऑफ द हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स वर IIH चुंदरीगढ़ रोड, जो कि वो डिमोलिश करके और हाई राइज बनाते चले जा रहे हैं. मैं उनसे ये बोलती हूँ कि इस सिटी को, एज यू नो, यू आर सिविल इंजीनियर एंड आर्किटेक्ट्स हैं इधर, उनको बिल्डिंग को सिटी को हॉरिजॉन्टली एक्सपैंड करना चाहिए, बजाय इसके कि आप उन्हीं बिल्डिंग्स को उधर ही गिरा कर हाई राइज बनाते जा रहे हो. पानी का प्रॉब्लम है, सीवरेज है, वो आप कैसे करोगे. एक्चुअली मैडम पॉपुलेशन का इशू है कराची, क्योंकि डेंस पॉपुलेशन है कराची में, तो वहाँ पे जो हमारी कंस्ट्रक्शन का स्टाइल है, इसलिए वो वर्टिकल स्टाइल है, क्योंकि वो डेंस पॉपुलेशन है, वहाँ पे हाईली पॉपुलेटेड सिटी है. बट उसी रोड पर क्यों और है? IIH चंडीगढ़ रोड इज डिक्लेयर्ड IIH चंडीगढ़ रोड is declared as a commercial road. That's why there are so many commercial plazas. But you don't have to demolish the historical buildings and build a commercial plaza, है ना. आप उसको, आप सिटी को, yes we, जी, है ना. ये मेरा इशू है कि आप उन्हीं ओल्ड बिल्डिंग्स को गिरा के जो yes. जी, तो ये हो रहा है ना IIH चुंदरीगढ़ रोड पे, क्योंकि उनको, आप जैसे आप बोल रहे हो कि कमर्शियल स्ट्रीट है, यू आर राइट, बट इट इज वेरी एक्सपेंसिव एंड दैट इज व्हाई दे डोंट वांट टू कीप देयर हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स.
हिस्टोरिकल बिल्डिंग से उनको क्या फायदा मिल रहा है? कुछ भी नहीं। तो वो उसको डिमोलिश रातों रात करके हाई राइज बना देते हैं। बट डोंट यू थिंक कि इतनी हाई राइज होंगी मैडम यही 70 स्टोरी? इस चीज की इम्पोर्टेंस हमें यस यही तो हमें कन्वे करना है लोगों को और स्टूडेंट्स को, क्योंकि स्टूडेंट्स दे आर फ्यूचर स्टार्स। तो उनको जब तक इस चीज की इम्पोर्टेंस का पता होगा तभी ये चीजें आगे जाके हमारी बच सकेंगी। जी, तो इनकी आप जब इम्पोर्टेंस इस तरह भी आप उनको बताएं कि इसका इम्पैक्ट कितना बुरा पड़ रहा होता है। आप एक 6 किलोमीटर की रोड को आपने कमर्शियल डिक्लेयर कर दिया, उधर ही आप 60 स्टोरी बिल्डिंग बनाते जा रहे हो, तो वो कितना पोल्यूशन और कितना होगा, कितना एनवायरमेंटल इम्पैक्ट उस बिल्डिंग का पड़ रहा होगा, सीवरेज, वाटर, ट्रैफिक, स्मॉग, so what impact we are getting on that road. So shouldn't we expand that road horizontally? आप लोग सिटी के एक्सपेंशन इस तरह करो ना, ये आर्किटेक्ट्स का और इंजीनियर्स का काम होता है कि आप एक्सपेंशन के प्रपोजल्स दो कि उसको हम किस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं। वो नहीं कर रहे होते, आप उसी बिल्डिंग को गिरा के उधर ही 70 मंजिला इमारत बना दोगे। तो ये आपको मैसेज देना है यंग लोगों को, यंग इंजीनियर्स को, कि दे शुड थिंक अबाउट एक्सपेंडिंग द सिटी हॉरिजॉन्टली। आप कैसे उसको कमर्शियल करो आप, बट डिफरेंट जोन्स क्रिएट करो ना, जैसे ऑल ओवर द वर्ल्ड हो रहे होते हैं। अब शाम के वक्त आया चंडीगढ़ रोड से आप 2 घंटे से भी नहीं पहले नहीं निकल सकते हैं, इतना रश होता है और एक छोटी सी रोड है। तो ये तो प्लानिंग नहीं होती ना, सही है ना? तो ये आपने अपने इंजीनियर्स को मैसेज देना है। और मैडम काफी 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 ऐसी काफी ऐसी साइट्स हैं जो अभी तक अनडिक्लेयर्ड हैं, हेरिटेज बिल्डिंग्स अनआइडेंटिफाइड है। कराची में नहीं, हमने तो तकरीबन 600 साइट्स कराची के अलावा जो हमारा कराची के अलावा जो हमारे सिंध के डिफरेंट सिटीज़ हैं वहाँ पे वो पुरानी बिल्डिंग्स जैसे बनी हुई हैं, तो वो काफ़ी आई थिंक अनडिक्लेयर्ड हैं अभी तक। वो हेरिटेज बिल्डिंग हैं या नहीं है वो पता ही नहीं है, क्योंकि अभी रिसेंटली जो हमारा सिंध बिल्डिंग का जो जिस तरह हम कहें कि पहले तो वो कराची बिल्डिंग था तो वहाँ तक महदूद था कराची तक, फिर उसको 2011 में या 10 में उसको उसका जुरिसडिक्शन बढ़ाया गया, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी किया गया। तो अभी वो ज़ाहिर है अभी उन्होंने जो है ना कुछ बिल्डिंग आइडेंटिफाई की हैं, कुछ आइडेंटिफाई नहीं की हैं सिंध के डिफरेंट सिटीज़ में। तो इस पे भी जो है ना गवर्नमेंट को चाहिए कि वो डिफरेंट जो बिल्डिंग्स हैं उसको आइडेंटिफाई करें, अगर वो हेरिटेज में हैं तो उसको हेरिटेज डिक्लेयर करें और अपनी वेबसाइट पे अवेलेबल रखें, क्योंकि जो लिस्ट पड़ी हुई है वहाँ पे बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की वेबसाइट पे वो सारी कराची की बिल्डिंग्स हैं। हाँ, और जैसे बदीन में है, शिकारपुर, मेरा तो ख्याल है शिकारपुर टाउन पूरा ही हेरिटेज डिक्लेयर होना चाहिए। उसको किस तरह लोगों ने लूटा है, खिड़कियां, दरवाजे, बिल्डिंग सब यस तबाह यस यस कर यस दिया। फिर उसका एक कवर्ड बाजार था शिकारपुर का, फिर मीरपुर खास है, उसमें कितनी हेरिटेज साइट्स थी, वो सब तबाह हो ढक रही है। बाजार, यस यस। हाँ, तो ये काम हमारा है ना गवर्नमेंट। शिकारपुर, यस, शिकारपुर इज सिटी ऑफ हेरिटेज। बिल्कुल, तो ये सब होना चाहिए। यस, मगर जैकबाबाद ले लें, वहाँ पे कितनी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं। तो अब इसके लिए हम सिर्फ गवर्नमेंट को ही ब्लेम कर सकते हैं, मगर अकेली गवर्नमेंट का भी ये काम नहीं होता है। अगर आप लोग मिलकर कोई हम छोटी-छोटी एनजीओज़ बना लो, कोई सोसाइटी, वी मस्ट रिकमेंड, हाँ, आप लोग रिकमेंड करो, बिकॉज़ हर जगह पे तो गवर्नमेंट नहीं फॉलो। वी मस्ट रिकमेंड, यस। जी, आप लोग कोई छोटी एनजीओ बनाओ, कोई सोसाइटी बना लो जो कि इकट्ठी होके ये सब कुछ डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करे, तस्वीरें आप भेजें कि आप इसको इंक्लूड करो अपनी लिस्ट में। तो फिर हमारा काम है आगे से उसको परस्यू करना। तो ये जो लोग मोहल्लों में रह रहे होते हैं और इंशाल्लाह, इंशाल्लाह वी विल, हुँ? इंशाल्लाह वी विल वर्क ऑन इट मैडम। हाँ, आई होप सो कि ये आप लोग करोगे। यंग लोगों ने इसको सँभालना है आगे यस चल यस के। और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ होती है, यस, जैसे ये जो लाहौर में मेट्रो बन रहा था। लाहौर में कौन बुला रहा है? किसी को कोई बुला रहा है, बच्चा Madam, ना? I want to ask question. जी, जी। जी, जैसे आपने पहले बात की, मैं भी कल इसके बारे में पढ़ रहा था कि इसमें हेरिटेज बिल्डिंग के सिलसिले में दो लोगों के बीच में हमेशा डिबेट चलती रहती है। एक अर्बन सेटलर्स होते हैं जो बोलते हैं कि जो हमारे हेरिटेज साइट्स है
उनको प्रिजर्व करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर उनको हम डिमोलिश करके वहाँ पे एक हाई राइज बिल्डिंग बनाए तो ज़्यादा आबादी को हम वहाँ पे अकोमोडेट कर सकते हैं। तो आपका ये ख्याल है कि हमें हेरिटेज बिल्डिंग्स को प्रिजर्व करना चाहिए। तो इस हिसाब से मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर हम हेरिटेज बिल्डिंग को प्रिजर्व कर रहे हैं तो उसका इसका जवाब अगर आप मुझे 3 हिस्सों में दें, कल्चरली, सोशली एंड इकोनॉमिकली, इन 3 हिसाबों से हम क्यों हेरिटेज बिल्डिंग को अगर प्रिजर्व कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, उसका बेनिफिट्स हमें इकोनॉमिकली हमारी कंट्री को और हमारी सोसाइटी को सोशली और लोगों को कल्चरली उसका फ़ायदा क्या होगा, ये क्लियर कर दें। काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन है। हाँ, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। और मेरी ये सारी टॉक का मेन चीज़ ही ये थी कि देखिए कल्चरली जैसे मैंने बताया, अब बहुत लोगों का ये ख्याल है कि ये जो ब्रिटिश बिल्डिंग्स हैं ये हमें बुरे पास्ट को याद करा रही होती हैं, बट आप ये सोचें कि ये बिल्डिंग्स जिन आर्किटेक्ट्स ने बनाई थी दे वर अमंग्स द बेस्ट आर्किटेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और ये मार्वल्स हैं एक तरह के। सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है, हमारे म्यूजियम की, इंपीरियल बैंक की बिल्डिंग है। There are so many other buildings which were all constructed and designed by famous architects of the world. Number one, it gives you hang of the architecture that was among that time, कि वो लोग उस वक्त किस किस्म का आर्किटेक्चर कर रहे थे। रेड सैंडस्टोन लेकर आए जोधपुर से, वो एक हिस्टोरिकल चीज है। उस वक्त जोधपुर से रेड सैंडस्टोन लाना, फिर इनकी बिल्डिंग्स बनाना, तो एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है इस चीज की कि जो अगर आपने अभी उसको बिल्डिंग को इरेज कर दिया, आफ्टर 30 years nobody would know कि there was such kind of a building and there were Britishers and there was stone work in this city। तो ये तो सारा आप जो अभी मोर्टार से और ये जो प्लास्टर से चीजें बन रही हैं सीमेंट की, वही बिल्डिंग्स रह जाएंगी। तो कल्चरली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर पास्ट, एंड लाइक आई सेड इट गिव्स यू रिलैक्सेशन। लाइक व्हेन पीपल कम टू माय म्यूजियम, आपको हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स को रीअडॉप्ट करना चाहिए ताकि आप लोगों को उसकी एक तो उसकी एस्थेटिक ब्यूटी बता सको, दूसरा उसको आप यूज कर सको इकोनॉमिकली। हम लोग तो खैर टिकट नहीं ले रहे होते, बट यू कैन यूज इट एज म्यूजियम विच चार्जेस मनी। तो इससे आप इकोनॉमिकली उससे फायदा उठा सकते हो उस बिल्डिंग से। देयर आर सो मेनी म्यूजियम्स इन द वर्ल्ड, लाइक मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट है, और जर्मनी में म्यूजियम्स है, वो पैसा लेते हैं और बहुत पैसे कमाते हैं उस चीज से। तो इकोनॉमिकली ये फायदा हो जाता है इसका, और सोशली ये फायदा है कि पीपल लाइक टू गो टू सच प्लेसेस। अब आप भी कहीं शहर में जाओगे, आपको जब कोई पुरानी बिल्डिंग नजर आएगी, कोई पुरानी जगह, तो इट इज ह्यूमन नेचर, आप उसको अपने आप से निकाल नहीं सकते ना, जैसे आपकी रूट्स में एक चीज होती है। So you can't take it out. You have to go to a historical place or a building which is your predecessor's building. तो ये तीनों चीजें इसमें कवर होती हैं हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स में। और once we will destroy this, तो फिर क्या होगा, आपकी नेक्स्ट जनरेशन को तो पता नहीं होगा ना कि ये बिल्डिंग इधर थी, यहाँ किसकी प्रेजेंस थी, आपका पास्ट क्या है। एंड योर पास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई बिलीव दैट इट इज इम्पोर्टेंट टू, मेरी हर जगह में यही आर्ग्यूमेंट होता है कि ये इनको हमें कंजर्व करना चाहिए। और क्या था, कुछ और क्वेश्चन था या मैंने मिस कर दिया? जवाब हाँ, एक और ठीक था मैडम, आपका आंसर बिल्कुल दुरुस्त था। एक और पॉइंट मेरे ध्यान में ये है कि लेजिस्लेशन को हमें स्ट्रॉन्ग करना चाहिए बहुत ज्यादा। ये फिर मैं मिस हो जाएगा, हमारे पास लेजिस्लेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है टू प्रोटेक्ट ओल्ड बिल्डिंग्स। हाँ, तो ये लेजिस्लेशन जब तक स्ट्रॉन्ग मैडम एक जी, एक सवाल ये है कि जैसे हमारी ओल्ड बिल्डिंग्स हैं, जो हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं, उसमें कुछ डिफरेंट कैटेगरीज हैं कि हम फॉर एग्जांपल इस कैटेगरी को हम रहने दें और लो कैटेगरी वाली को डिमोलिश कर दें, इस तरह कोई कैटेगराइज कर सकते हैं हम? हाँ, ये कैटेगराइजेशन हुई है इसकी। हेरिटेज कमेटी जो है हमारी 1994 में बनी थी, सिंध हेरिटेज कमेटी, उसमें कैटेगराइजेशन भी हुई है। और जो बिल्कुल ही थ्रेटन बिल्डिंग्स हैं उनको परमिशन भी दे देते हैं डिमोलिश होने का। और इसकी ए कैटेगरी है, बी कैटेगरी एंड सी कैटेगरी। सो इट डिपेंड्स ऑन द कैटेगरी कि आपको किससे परमिशन भी दे रही होती है हेरिटेज कमेटी। उसमें कंस्ट्रक्शन भी हो रही होती है। यू कैन कीप द फसाड एंड यू कैन कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग एट द बैक ऑफ द फसाड।
उससे ये है कि आपकी मेमोरी भी उधर है और नई बिल्डिंग भी कंस्ट्रक्ट हो जाती है। तो मैं लेजिस्लेशन की बात कर रही थी कि हमें लेजिस्लेशन को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, क्योंकि लोग जब बिल्डिंग गिरा लेते हैं तो कोई उनको जाके पकड़ नहीं रहा होता, कोई उनको सजा नहीं दे रहा होता, कोई उनके ऊपर फाइन है तो बहुत ही कम फाइन है, 1 लाख रुपए का फाइन है, वो तो कमर्शियल बंदा वैसे ही दे देता है। तो हमारी लेजिस्लेशन बहुत वीक है, उसमें कोई पकड़ नहीं है इन लोगों के लिए जो इन बिल्डिंग्स को गिरा रहे हैं। अब मुझे तो लगता है ये मैडम मैं अपना मैं अपना आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जब हम बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में थे तो एक विलेज था, वहाँ पे कोई बिल्डिंग थी पुरानी, तो हम वहाँ गए तो वो लोग उसको डिमोलिश कर रहे थे, क्योंकि वो उनकी अपनी प्रॉपर्टी थी, तो उसको डिमोलिश कर रहे थे। तो फिर हमने जो किताब खोले तो पता लगा कि ये तो हेरिटेज में आती है, तो हमने उनको नोटिस दिया। तो वो लोग जो है ना फिर उस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं समझते, वो हमसे नोटिस दिया, वो हमसे लड़ने लगे कि भाई ये तो हमारी प्रॉपर्टी है, आप कौन होते हैं हमें नोटिस देने वाले। सो द पीपल्स आर थिंकिंग लाइक दिस। जी, यही मैं बोल रही हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उनको अवेयरनेस देनी है, वो उसकी रिस्पेक्ट करें। मगर ज्यादातर इंजीनियर्स, आई एम सॉरी टू से, अभी सारे आप लोग इंजीनियर हो, बट वो लोग इस चीज की वैल्यू नहीं कर रहे होते। उनके यहाँ इस चीज की वैल्यू नहीं है, उनके यहाँ कमर्शियल बिल्डिंग की वैल्यू है, क्योंकि उनको एक प्रोजेक्ट मिल रहा होता है, 60 मंजिल का बन रहा होता है। मैडम वैल्यू है। अच्छा, वैल्यू है, तभी तो आज का प्रोग्राम हम कर रहे हैं ना। हाँ, अब इसके बाद आप लोगों ने प्रैक्टिकली वैल्यू भी करनी है। ये तो कर रहे होते हैं सब लोग। Yes. Maybe out of Yeah. 100, 10 Actually, जी, if someone have the background about the archaeology and heritage, then he can give the importance. Otherwise, they think the modern development is more beneficial rather than the old buildings. क्योंकि मैंने थोड़ा कंजर्वेशन वालों के साथ काम किया है, बिल्डिंग कंट्रोल वालों के साथ काम किया है, और आर्कोलॉजी वालों के साथ काम किया है, और फिर सिविल इंजीनियर हूँ बेसिकली, और इन्वायरमेंट में मास्टर्स किया है। तो एक मल्टी डायमेंशनल है मेरा अपना बैकग्राउंड, तो इसलिए मैं इस चीज़ को इम्पोर्टेंस देता हूँ, और मैं ये भी चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स को भी थोड़ी अवेयरनेस मिल जाए। हाँ, तो इम्पोर्टेंस तो मेरा ख्याल है हर बंदा दे रहा होता है उसको। जरूरी नहीं है कि हम उनको आर्कियोलॉजी पढ़ाएं तो उनको बिल्डिंग की वैल्यू पता चलेगी। जब आप सपोज अगर आप आई चंडीगढ़ रोड से गुजर रहे हो, तो जैसे मैंने कहा, एस्थेटिकली आप खुद ही अप्रिशिएट करते हो ना। अब मेरे लिए इंपीरियल बैंक ऑफ बिल्डिंग में बच्चे आते हैं छोटे छोटे, वो बिल्डिंग को अप्रिशिएट करते हैं कि इतने बड़े बड़े कॉलम है, कैसे बनाए हैं। इट्स काइंड ऑफ अमेजमेंट फॉर चिल्ड्रन ऑल्सो। सो इट्स नेचर ऑफ ह्यूमंस। आप जाते हो कहीं म्यूजियम देखने, क्यों जाते हो? बिकॉज आपको अपना पास्ट अच्छा लगता है ना, तो आप देखना चाहते हो। और एक पास्ट से आप उस पूरी नेशन को समझ लेते हो कि उस नेशन की क्या साइकी है, whether they are destructive people or they are constructive people. This is all about your psychology also. तो ये हमें बच्चों में सिर्फ अवेयरनेस डालने की जरूरत है जब वो छोटे हो। जरूरी नहीं है कि हर बंदा आर्कियोलॉजी पढ़ेगा ही तो वो बिल्डिंग को संभालेगा। अपनी बिल्डिंग एंसेस्टर्स की बिल्डिंग है, अपनी पुरानी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, तो हर बंदा कर रहा होता है। बट हमारे रूल्स ऐसे, जैसे आपने कहा आप उसको रोक रहे थे, उन्होंने कहा हमारी बिल्डिंग है। अब उनको ये सेंस नहीं है कि ये बिल्डिंग पब्लिक की ओनरशिप है। इट्स नॉट देयर हेरिटेज, इट इज नाउ अ शेयर्ड हेरिटेज ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट ओनली पाकिस्तान। प्रॉपर्टी ऑफ स्टेट। जी बिल्कुल। अब जो इतने बड़े बड़े लोग गुजरे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी इस काम में गुजारी, उनकी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं और हम उनको डिस्ट्रॉय करें तो वो तो ठीक नहीं है ना। जो भी मार्वल्स ऑफ द वर्ल्ड है, इवन द मॉडर्न आर्किटेक्चर कितना अच्छा अच्छा है। आप लोगों की इतनी फेमस आर्किटेक्ट्स हैं जिनके मैंने घर देखे अमेरिका में, उन्होंने उनको कंजर्व किया हुआ है। 50s के भी हैं, 60s के भी हैं। आई मीन जो चीजें हैं पीस ऑफ आर्ट, वो लोग कंजर्व करते हैं, और ये नेशंस इसी से बनती हैं। जब तक आप अपनी हिस्ट्री की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, मैडम कोई याद नहीं होगी। जी मैडम, कोई ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो आफ्टर पार्टीशन वाली बिल्डिंग जो हमने अभी हेरिटेज का पार्ट बना ली हो, कोई डिक्लेयर हो गई हो? हाँ, आफ्टर पार्टीशन ये अमेरिकन कॉन्सुलेट की बिल्डिंग है, वो हेरिटेज का पार्ट है।
और हमने उनको प्रपोज किया है कि अभी वहाँ पर हम कराची का म्यूजियम भी बनाएंगे। मेट्रोपॉलिटन की बिल्डिंग है जो कि हेरिटेज का पार्ट है। ऐसी और कौन सी है इसको मुझे याद नहीं आ रहा, बट ये 2 मेन बिल्डिंग्स हैं जो कि पाकिस्तान बनने के बाद बनी है 1950s की, जिसको हम आर्ट डिको बोलते हैं। तो काफी सारी बिल्डिंग्स हैं जो मेहरान होटल की लाइन में है, वो भी आर्ट डिको की बिल्डिंग्स। सो आर्ट डिको इज नाउ हेरिटेज 50s और 60s में जो बनी। Okay, and madam, Sakhar city is very important also. After the Shikarpur, Sakhar is very important because there are different heritage buildings, barrages located in the Sakhar city. और आप देखो लॉयड्स का ब्रिज, there are various tombs and लॉयड्स ब्रिज इज अ मार्वल ऑफ इंजीनियरिंग, कैसे वो बना हुआ है लॉयड्स का जो yes it's our proud. हाँ, तो फिर ये चीजें तो देखने जैसी है ना, लोग जाते हैं कितना प्राउड फील करते हैं। एंड आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, अब मुझे आप लोगों का पता नहीं है, बट आदि जो आर्किटेक्चर की जो in Khairpur, in our Khairpur city, हमारा वहाँ पे ये है कि टालपुरों का हाउस है। फैज महल है, फैज महल। It's also declared Faiz Mahal. This is also declared as heritage building. तो अब आप देखो खैरपुर में एक और भी बिल्डिंग है। हाँ, कौन सी? जैसे फैज महल हो गया और बाली का बंगला है और उसके साथ और भी बिल्डिंग्स है, पर एक बिल्डिंग है जिसके बारे में आपको बताना चाहूँगा और आपको ये भी कहना चाहूँगा कि अगर कभी आप हमारी खैरपुर सिटी आएँ तो मैं आपको वो बिल्डिंग, अब बची तो नहीं है, जाके उसका गेट ही बचा है। जब पार्टीशन नहीं हुआ था पाकिस्तान का इंडिया से, तो उस वक्त जो पूरी एशिया की लीडिंग सिल्क फैक्ट्री थी वो हमारी खैरपुर सिटी में थी, और अभी भी उसको तो नेशनल बैंक बनाया हुआ है यहाँ पे, मगर अंदर से सारी टूट गई है। मगर अभी भी गेट के बाहर उसके ऊपर लिखा हुआ है इंडिया लीडिंग सिल्क फैक्ट्री। एक वो बिल्डिंग है, और इस किस्म की और भी कुछ बिल्डिंग्स हैं खैरपुर में जो मेरी नज़र में तो बिल्कुल तबाह हो गई हैं, मगर कुछ उनके रूइंस अभी मौजूद हैं। तो ऐसी बिल्डिंग्स को अगर हमारे खैरपुर सिटी में है तो नो डाउट और सिटीज़ में भी होगी जहाँ पे मैं भी हमने नहीं देखा हुआ आज तक। तो जैसे कि आप इस पे काम कर रही हैं, अगर आप इंटीरियर सिंध में आएँ और हम आपको एक टीम दें जो आपको ऐसी बिल्डिंग्स दिखा सकें, तो क्या आप हमारी सिटीज के लिए कुछ काम कर सकते हैं? Noman, we will make a team, and we will make a team and take a photograph and we will report to madam. Inshallah, we will work together. और मेरा ख्याल है मैंने ये देखी हुई है जिसकी ये बात कर रहे हैं। मैंने तो ये सर्वे किया था 1990s में, हम लोगों ने पूरा सिंध का सर्वे किया था और बहुत सारी बिल्डिंग्स डॉक्यूमेंट की हैं, स्तूपास डॉक्यूमेंट किए हैं जो अब नजर भी नहीं आ रहे बहुत सारे शहरों में, हैदराबाद, नवाबशाह। अब 1990s को भी 1990s को भी मैडम 30 साल हो गए हैं, वो तो अभी तो आप लोग पैदा नहीं हुए होंगे उस वक्त जब 30 ईयर में काफी चेंजिंग आ जाती है। हाँ, तो ये चीजें जैसे अब आपने कहा, अब आप प्रेजेंट डॉक्यूमेंटेशन करें और हमें भेजें, और बहुत सारे लोग होते हैं जो इसकी फंडिंग देने पे तैयार होते हैं। इसलिए हम लोग हर जगह में तो नहीं जा सकते हैं ना। अब जब हम यंग थे तो हम हर जगह जा सकते थे, अब तो इतने बिजी हो गए और ओल्ड एज हो गई है कि वी कैन नॉट बी एवरीवेयर। सो यू पीपल हैव टू जॉइन अस एंड लेट अस नो कि क्या बिल्डिंग है और उसकी क्या आपको उसकी कंजर्व करने के लिए जरूरत है, तो हम लोग उसकी फंडिंग अरेंज करते हैं। हमारी एनजीओ है, इस वक्त हम लोग काफी प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, तो ये मोस्ट और अमेरिकन बहुत ज्यादा। मैडम, हमने एक प्रोजेक्ट किया था आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट शालाती यूनिवर्सिटी के साथ मिलके, वहाँ पे हमने एक एंडोमेंट की फंडिंग मिली थी। तो हमारा जो प्रोजेक्ट लीडर था वो डॉक्टर कासिद मला, ही इज नाउ डॉक्टर कासिद मला, नाउ ही द हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ आर्कोलॉजी। तो वहाँ पे हमारा उस वक्त प्रोजेक्ट का जो हिस्सा था, एक तो ये कोटली जी का फोर्ट है ये था, और दूसरा एक टोम्ब है वहाँ पे कुछ। वो सत्यम क्लास का कौन सा टोम्ब?
सत्येंद्र आस्थान, सत्येंद्र आस्थान पे काम वहाँ पे नहीं, वहाँ पे कुछ नहीं वो टॉम है, कादिर बख्श के नाम से। हाँ, कादिर बख्श जो कुबो जो है, कादिर बख्श के टॉम्स, कुबो हाँ बोलते कादिर बख्श को ये टॉम्स थे वहाँ पे। तो वो हमने किए थे, उसकी सर्वे की थी हमने। बाकी जो हमारा पार्ट था वो हमें ट्रेनिंग देनी थी। 15 कैंडिडेट्स थे, उसको हमने ट्रेनिंग दी थी। और उसमें मेरा पार्ट ये था कि मटेरियल और उसकी ड्राइंग्स वगैरह मेरा पार्ट था। हाँ, मगर कोटी जी की कंजर्वेशन में काफी गलतियां हैं जिससे कि हम एग्री नहीं कर रहे होते हैं ना। काफी जो सीमेंट यूज किया था यस उसमें, यस यस आई डोंट एग्री विद दैट कंजर्वेशन। थोड़ा सा वो यस उसको यस 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 यूज इट यस करने की जरूरत है, आई थिंक सो। डेफिनेटली मिस्टेक्स हैं, हाँ मिस्टेक्स हैं, वहाँ पे मिस्टेक्स तो हैं। क्योंकि हाँ, आपको जो मटेरियल यूज करना है वो पुराने मटेरियल के साथ रिजेम्बलेंस हो, सेम मटेरियल यूज करना है ताकि वो उसकी ओरिजिनलिटी बहाल रहे। हाँ, तो ये वहाँ पर सर कोटी जी में काफी मिस्टेक्स हुई हैं कंजर्वेशन में, जो कि लोग क्रिटिसाइज कर रहे यस हैं। यस जैसे रनी जी कोट मैडम, को देखिए आप, रनी यस कोट को यस तो बिल्कुल रुइन कर दिया उन्होंने कंजर्वेशन पर। आई डोंट, हालांकि हमारे दोस्त ही हैं वो सारे, इश्तियाक साहब हैं, और हम सब शुरू में एक साथ काम करते थे। अभी यस भी वी आर फ्रेंड्स, बट मैं उनके साथ एग्री नहीं करती उनकी कंजर्वेशन के साथ। जी आप कुछ कह रहे थे, सॉरी। टेक्निकली तो आर्ग्यू होना चाहिए ना, हाँ टेक्निकली तो आर्ग्यू होना चाहिए। हाँ, मगर लाशारी साहब नहीं करते, वो कहते हैं खामोश रहे। मैं कहती हूँ कि आदमी को बताना चाहिए कि ये चीज ठीक है, ये नहीं है। बट हर बंदा आपके साथ एग्री भी नहीं कर रहा होता ना, तो आप ओके, क्या कर सकते हैं। यू कैन जस्ट टेल जब देम आप कि काम करते हैं तो जब आपने आप रनिंग काम देखा, करेंगे तो आपकी मुखालफत तो आएगी ना वो फिर। आपने रनिंग कोड की यस यस, कंजर्वेशन आई हैव की है? विजिटेड। डू यू एग्री विद दैट? यू डू एग्री? तो जो उन्होंने तो सारा सीमेंट लगाया है। सिविल इंजीनियर हमें तो एक इतनी नहीं है ज़ाहिर नॉलेज। ओह, अच्छा अच्छा। अच्छा, तो इश्तियाक अंसारी साहब भी सिविल इंजीनियर थे, वापडा में थे ना वो तो हमारे साथ बहुत अरसे से काम अच्छा करते हैं अच्छा, हम लोग यस सब तो वो तो खैर दो लाशारी साहब के साथ यस करते यस थे, यस। फिर हमारी एनजीओ 1980 से हमारे साथ काम कर रहे थे। तो वो भी सिविल इंजीनियर है, उनको इसका कोई सेंस नहीं है कि ओके ओके। मटेरियल क्या होना चाहिए। और हम लोग एज अ कॉन्जर्वेशनिस्ट सोचते हैं, तो हमारी बहुत लड़ाई होती है। जो मेरे कंसल्टेंट थे म्यूजियम में, उनकी भी मेरे साथ काफी लड़ाई थी। फिर उन्होंने मेरे खिलाफ लेटर लिखा था गवर्नर को कि ये डायरेक्टर जो है ये बहुत एडमेंट है, बट मैं उनके साथ एग्री नहीं कर सकती थी। आई आर्किटेक्ट का थिंक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। आई थिंक हमें भी यूनिवर्सिटीज़ को सजेस्ट करना चाहिए जब हम कि हमारे सिलेबस में कंजर्वेशन, हेरिटेज कंजर्वेशन का कोई सब्जेक्ट ऐड कर दें ताकि हमें डिफरेंट प्रोजेक्ट में आसानी हो। हाँ, एटलीस्ट बुनियादी अबाउट द हेरिटेज बिल्डिंग, हाउ टू कंजर्व द हेरिटेज बिल्डिंग्स। अगर ये आपकी अच्छा है ना रहेगा। आई थिंक यूनिवर्सिटी में, वी तो शुड सजेस्ट। यू शुड सजेस्ट, अगर आपकी कोई से है यूनिवर्सिटी में, यू शुड हैव अ डिपार्टमेंट ऑफ कंजर्वेशन, जिसमें, बिकॉज आप देखो कंजर्वेशन का रिजल्ट उस वक्त नहीं मिल रहा होता। अगर आपने गलत मटेरियल लगाया है तो यू विल सी द रिजल्ट्स आफ्टर 10 to 15 years। ये बहुत मुश्किल काम है ना। आपको उस वक्त तो लग रहा है ये ओके, सही यस है, यस मगर अब जैसे हम नसरवान यस। जी बिल्डिंग की कंजर्वेशन कर रहे हैं, उन्होंने उसमें सारा नेल्स लगाए हैं मेटल के, आयरन के नेल्स थे, जिन्होंने पत्थर को फाड़ दिया। पत्थर दो दो टुकड़े हो गया, वो स्टूडेंट्स के सर पे गिर रहा होता है। तो ये सब चीजें जो होती है, ये कॉन्जर्वेशनिस्ट के सोचने का काम होना चाहिए। तो जब एक टीम बने तो दैट टीम शुड बी मल्टी डायमेंशनल टीम, जिसमें वर्सटाइल लोग हो, कॉन्जर्वेशनिस्ट हो, आर्कियोलॉजिस्ट हो, सिविल इंजीनियर हो, आर्किटेक्ट हो। जब तक ये सारे लोग इकट्ठे एक टीम में नहीं एनवायरमेंटलिस्ट होंगे, हो, ये एनवायरमेंटलिस्ट हो। हाँ, अब आप अपने हिसाब से सोच रहे हो, हम अपने हिसाब से सोच रहे हैं। तो ये आप लोग अपनी यूनिवर्सिटी में अगर प्रपोज कर सकते हो तो आप जरूर डिपार्टमेंट ऑफ कंजर्वेशन करें। ये मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि ये होना यस चाहिए। यस बेशक हफ्ते में 2 क्लासें यस लें, यस, 3 क्लास, इंशाल्लाह। हाँ, बट इफ यू पीपल कैन से समथिंग अबाउट इट, यू शुड डू इट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हर बंदा अपने हिसाब से इस वक्त कंजर्वेशन कर यस रहा है। यस हर यस बंदा अपने हिसाब से कर रहा है, एंड यू नेवर नो आफ्टर 20 years क्या होगा। अब ये नसरवान जी बिल्डिंग 94 में इन्होंने रीस्टैब्लिश, मतलब रीलोकेट की थी इधर, तो अब उसके रिजल्ट्स लग रहे हैं, सारा पत्थर फट गया है।
हमें इतनी मुश्किल हो रही है, इतना हमें फंड मिला है बट फिर भी हम पूरा नहीं कर सकते हैं। इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव वर्क वी आर डूइंग। तो इस तरह से ना इसका रिजल्ट आपको 10 to 20 ईयर्स के बाद। मैडम भंबोर की साइट का भी थोड़ा बताइएगा, क्योंकि भंबोर भी मैंने विजिट किया था मगर उसको काफ़ी टाइम हुआ है। अभी तो आई थिंक आप भंबोर की साइट को। जी, बंगोर की साइट का मतलब क्या बताऊं, एक्सकवेशंस का 1958 से 65 तक हुई थी पहली एक्सकवेशंस। Then we made another license application. It was French, Pakistan, French and Italian. हम लोगों ने उसको री-एक्सकवेट करने का क्यों सोचा? बिकॉज जो उस वक्त एक्सकवेशन हुई थी वो साइंटिफिक नहीं थी। एक होती है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन और एक होती है नॉन साइंटिफिक। तो उस वक्त ज़ाहिर इतने वेज और मीन्स नहीं थे, और फिर इन लोगों ने सारा मटेरियल जो डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी था उन्होंने ऐसे डंप किया था। तो जब मैं एक्सप्लोरेशन ब्रांच में थी मैंने वो पूरा मटेरियल रिविजिट किया, उसके नए बैग्स बनाए। तो फिर हमें ये समझ आई कि हमें इसको साइंटिफिक बेसिस पे स्टडी करना है। सो वी स्टार्टेड एक्सकवेशंस फ्रॉम 2012 और 2016 तक हमने उसके एक्सकवेशंस किए हैं, और अभी हमने उसकी रिसर्च वर्क पूरा नहीं किया लिखने का। और ये जो साइट है इसका जो अर्लीस्ट टाइम पीरियड हमको मिलता है, अभी तक हम लोग 1st सेंचुरी BC तक पहुंच गए थे, उसके नीचे रॉक थी। और इसकी कंटिन्यूअस ऑक्यूपेशन है अप टू 12th-13th सेंचुरी, जब पोर्सिलेन इधर आई है, चाइनीज आए, और ख्वारिज़म शाह के ज़माने में ये साइट डिस्ट्रॉय हुई है। और इसके अलावा हमने इसके साथ साथ एक अंडर वाटर सिटी भी डिस्कवर की। तो मेरा ये ख्याल है जो कंट्रोवर्सी बंबोर और देबल की चल रही है वो उस साइट की वजह से वो कंट्रोवर्सी खत्म हो जाएगी। वो एक अंडर वाटर साइट है जहाँ पर एक 2 मस्जिदें हैं और एक किलिंग भी मिली है पॉटरी बनाने की। आई थिंक दैट कैन बी कॉल्ड देबल। और उधर हमें 2 फोलिएटेड कुफिक मिली है। अगर आप लोगों के यहाँ पर कोई वो हो तो मैं आप लोगों को वो सेंड कर सकती हूँ उस आर्टिकल का लिंक। यू पीपल शुड रीड दैट आर्टिकल जो हमने छापा है ना उसके ऊपर। तो अभी तो अब गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने उसको हमारा लाइसेंस ऑल ऑफ अ सडन खत्म करके इटालियन के साथ ज्वाइन हैंड्स कर लिए। तो मैं उसके लिए काफी अपसेट हूँ। मतलब हमारा भी कोई भी मैडम ऐसी इंफॉर्मेशन हो टेक्निकली, कोई टेक्निकल इंफॉर्मेशन हो तो जरूर शेयर किया करें। तो फिर मैं जो हमारा IC का चैप्टर है उस पे स्टूडेंट। हाँ हाँ, अच्छा, दैट इज वेरी गुड। मैं उसमें डाल सकती हूँ आर्टिकल। ईमेल कर दिया करें, ईमेल कर दिया करें, ईमेल कर दिया करें, या फिर हमारा जो फेसबुक है उस पे शेयर किया करें। तो अच्छा, मैं फिर वो शेयर कर दूंगा हमारे स्टूडेंट्स के साथ। हाँ ठीक है, ये चीज होनी चाहिए ताकि ये स्टूडेंट्स भी पढ़े ना। नोमान, कोई आपका सवाल था? नोमान, आर यू हेयर? नोमान, आपका कोई क्वेश्चन था? सर मेरा अभी जो ज़हन में बात चल रही थी वो काफ़ी चीज़ें जो क्वेश्चन थे मैंने लिखे हुए थे अपने पेज पे, मगर मेरे पूछने से पहले ही मैडम ने उनका आंसर दे दिया अपनी सेशन में। और एक और क्वेश्चन है कि अगर साइंटिफिकली और इंजीनियरिंग को छोड़ के हम एक कॉमन बंदे के हिसाब से देखें, जिसको मैं समझता हूँ कि अगर लिटरेचर के हिसाब से कहें तो ठीक रहेगा। अगर लिटरेचर के हिसाब से हम देखें इन बिल्डिंग्स को, तो एक कॉमन बंदे के ज़हन में क्या इम्पोर्टेंस, कैसे हम उनको बताएं कि इन बिल्डिंग्स की इम्पोर्टेंस क्या है? मैडम अस्मा इब्राहिम, आपकी क्वेश्चन है। अच्छा अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो उसकी एस्थेटिक ब्यूटी है। ऑफ कोर्स वो तो सारी की सारी खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं। कोई आपने बदसूरत बिल्डिंग देखी नहीं होगी हिस्टोरिकल, देखी है कभी? नहीं ना। हाँ, और सेकेंडली आपको ये बताना है, हमें बताने की जरूरत भी नहीं होती। उनका नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है किसने बनाई, कौन लोग रहते थे, वो क्या करते थे। एंड एवरीबडी लाइक्स टू वॉन्डर कि हाउ दे यूज्ड टू लिव इन दैट बिल्डिंग, इस कमरे में कौन था। हमने एक रिसेंटली बिल्डिंग, मुखी हाउस की बिल्डिंग हमने कंजर्व करी है। वो हिंदुओं की बिल्डिंग थी, मुखी होते थे हैदराबाद के, तो वो छोड़ के चले गए थे आफ्टर पार्टीशन। वो हमने कंजर्व करी है। जो उस बिल्डिंग हवेली में आता है वो सबसे पहले यही वॉन्डर कर रहा होता है कि इधर लोग कहाँ रहते थे, किचन कैसा था, वो कैसे कपड़े पहनते थे। हमने उसी हिसाब से वो म्यूजियम बनाया है।
तो आपको अपने इंसान को ये बताने की जरूरत ही नहीं होती कि आपने अगर एक हिस्टोरिक बिल्डिंग में एंटर हो रहे हो तो आपका क्वेश्चन क्या होगा, वो खुद ही सोच रहा होता है। अब जैसे अभी मैं जब ग्रीस गई एथेंस में, तो वो जो महल थे उनको देखकर आदमी खुद ही गुम हो जाता है कि ये कैसे बनाए होंगे उन्होंने, इधर पहाड़ी तक कैसे पहुंचे होंगे, कैसे रहते थे। तो ये एस्थेटिक है, एक सेंस ऑफ हिस्ट्री है जो आपको उस चीज के साथ लिंक कर रही होती है। तो उसमें आपको लोगों में ये सेंस करने की जरूरत नहीं है, सिवाय उन लोगों के जो मैटर करते हैं और जो इन बिल्डिंग्स को गिरा सकते हैं। वो लोग कमर्शियली सोच रहे होते हैं, उनको हम लोग फायदा कैसे दे सकते हैं कि वो इसको कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से ना सोचें। ये एक चीज है। वो आप सोचे ना, कितनी गिनी चुनी बिल्डिंग्स ही रह गई हैं, तो हमें उनको ये सेंस देना है कि आप ये बिल्डिंग डिस्ट्रॉय नहीं करो तो कितना फायदा होगा कौम का। अब जैसे मैं बेल्जियम गई थी, तो उन्होंने घरों को ही उन्होंने म्यूजियम डिक्लेयर किया हुआ था, और दिन में 2-3 घंटे वो खोलते थे पब्लिक के लिए, आप जाके वो घर विजिट कर सकते थे अंदर से, और उसके लिए गवर्नमेंट उनको कंपनसेशन देती है मंथली। तो उनका एक लिविंग स्टैंडर्ड भी अच्छा हो गया, प्लस उनको ये प्राउड भी फील होता है कि लोग आते हैं इधर विजिट करने के लिए, हमारा घर ऐसा है। एक ईगो भी होती है ना हर इंसान में। अब जितने ये चौखंडी की कब्रें हैं, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ ईगो। ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए उन्होंने इस किस्म की कब्रें बनाई थी। तो ये एक ईगो सेटिस्फेक्शन भी होती है जिनका घर है। तो बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है हमेशा कि गवर्नमेंट उनको इंसेंटिव देगी तो लोग ये काम करेंगे। आम इंसान के लिए तो इट्स अ प्रिविलेज टू गो एंड विजिट। You are right. You are right. Yeah, you are right, madam. है उन्होंने, वो 3001 ट्रिप का लेते हैं। वो सिर्फ आई चंडीगढ़ रोड, सदर, उधर सिर्फ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स दिखाते हैं। आप सोचें 3001 बंदे से लेते हैं, तो उनको इतना प्रॉफिट हो रहा है इस चीज से। एक स्टूडेंट मैडम एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है, मोहसन गोंदल। ये कह रहा है कि मीरपुर खास में एक आर्कोलॉजिकल साइट है, काहू जो दड़ो। जी जी, हाँ स्टूपा है वो, स्टूपा था। ये कह रहा है कि वो कह रहा है कि इट्स नॉट मेंटेन्ड बाय एनी अथॉरिटी। नहीं, ये स्टूपा मेंटेन्ड है डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी के अंडर में। इट्स डिक्लेयर्ड हेरिटेज बिल्डिंग। और इसके साथ ट्रेजिडी ये हुई है कि उसकी जितनी ईंटें थी, जितना सामान था, वो लोग निकाल के ले गए। बड़े खूबसूरत उसके स्कल्पचर्स थे। आप ऑरेलस्टाइन की किताब पढ़ें, एक्सप्लोरेशंस ऑफ सिंध, उसमें इस काहुजी तोड़े को उसने रिकॉर्ड किया है उस जमाने में 1920s में। इसके बड़े खूबसूरत स्कल्पचर्स थे और पूरा स्टूपा था। बट जो गांव के लोग थे इसकी ईंटें उठा उठा के ले जाने लगे। डिपार्टमेंट ने ये सही कह रहे हैं, उस पर कोई अटेंशन पे नहीं करी कि उसको किस तरीके से सेव कर सकते हैं। बट इट्स अ डिक्लेयर्ड हेरिटेज प्रॉपर्टी। I think there should be a force that should they maintain the concerned heritage sites. There should be a force. ये हमारे डिपार्टमेंट में होती थी, जो फेडरल का था, एंटीक्विटी ट्रेड कंट्रोल ब्रांच। तो वो उनके पास एक गाड़ी भी होती थी, वो जाके विजिट करते थे, इन साइट्स को देखते थे। बट आफ्टर द डेवोल्यूशन तो काफी बुरा हो गया है। मतलब लाइक इट वाज डन इन अ हरी। डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर वाज नॉट प्रिपेयर्ड, उसमें कोई आर्कियोलॉजिस्ट नहीं है। तो ये सब कुछ बड़ा अनप्रोफेशनल हो रहा है आजकल। वेरी सैड बट इट इज हैपनिंग। Yes, madam, there is another building in but we should highlight आप at least the government of sin, हाँ ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स हैं उसके अंदर, स्टूपा के अंदर लगे हुए। मैडम देयर इज अनदर बिल्डिंग हम हाईलाइट करें ताकि गवर्नमेंट की अथॉरिटीज जो एजेंसीज हैं वो उसका अटेंशन लाएं इस हेरिटेज की तरफ। हाँ, मेरा ख्याल है कि आप लोग जो इतना बड़ा काम कर रहे हो, ये सब कर रहे हो, लेक्चर कर रहे हैं आप अरेंज, आई थिंक यू कैन डू इट इजीली। आप 4-5 यंग लोग मिलकर इस आराम से काम कर सकते हो। एंड वी विल सपोर्ट यू, विल गिव यू ऑल द इंफॉर्मेशन यू वांट, वी विल गाइड यू हाउ टू डॉक्यूमेंट। तो अगर आप पास टाइम के तौर पे भी काम करो ना, थैंक यू मैम, थैंक यू के लिए। वी रियली नीड पीपल लाइक यू एंड आई थिंक यू शुड टेक अप दिस टास्क। I hope so. Thank you, madam. Now our time is up. So thank you very much, madam, for your kind time and your precious time. And we really appreciate your time.
and you provide valuable information for me and for my students. So hope we will have another session in coming weeks. ठीक है. और अगर आपने किसी और स्कॉलर्स को बुलाना है, हमारे जो फ्रेंड्स हैं जो इस काम में इन्वॉल्व हैं, लेट मी नो, आई कैन गिव यू द रेफरेंस. ठीक है. आई थिंक स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है कि हम उनको डिफरेंट. थैंक यू मैडम. ठीक. ओके, यू वेलकम. इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़.